Assalamu alaikum students. Today I am discussing the basic concepts for Viva for the subject of statistics and computer application. कल आपका Viva है. So majority of the students were calling and asking कि Viva क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर कि वाइवा के अंदर आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज करने हैं चैप्टर नंबर 1 से. आपको बहुत लंबे नोट्स और वो याद करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मेमोराइज द की टर्म्स. जैसे व्हाट आर द वेरिएबल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल. Qualitative variable is the one which is expressed in quality, which cannot be which cannot be measured, which cannot be expressed in number. For example, eye color, hair color, gender. In the same way, quantitative variable is a variable which can be expressed in numbers, it can be measured, it can be counted. For example, number of students in a class, height, weight, ages. Now, further, there are two subtypes of variables of quantitative variable. Number one, discrete, and other is continuous. Discrete is the one which can be counted, जिसके अंदर गैप और जम्प्स होंगे, that is called discrete variable. And in discrete variable, the values come in counts with jumps. For example, number of students in a class, number of children in a family, number of big books in your bag. These all are the example of discrete variables. In the same way, you have continuous variable. Continuous variable is the one which cannot be which can not assume any jump or break. जो आपका continuously move करता है, it includes points, fractions. Also it is measured. हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका continuous variable है वो measurable होता है. It is measured in units. For example, height, age, pressure, these all are measured in term of some units. For example, height is measured in inches. In the same way, your weight is measured in kgs. These are the example of continuous variable. इसके बाद एक question जो बहुत ज़्यादा important है, that is what is the difference between primary and secondary data, grouped or ungrouped data. Primary data is the one which you collect personally through some effort और जिसके ऊपर कोई statistical application नहीं हुई होती. For example, अगर आप जाके अपनी क्लास में स्टूडेंट से मार्क्स पूछते हैं, स्टूडेंट से उनकी एजेस पूछते हैं, यू कलेक्ट द डेटा पर्सनली बाय योर सम पर्सनल एफर्ट्स, और ये फर्स्ट हैंड डेटा या अनग्रुप डेटा भी कहलाता है. सो प्राइमरी डेटा इज़ द वन विच यू कलेक्ट पर्सनली with some help or by using your own efforts, and which is not undergone through any statistical treatment. इसी को हम अनग्रुप डेटा भी कहते हैं. ग्रुप डेटा और सेकेंडरी डेटा इज द वन विच इज अंडरगॉन थ्रू सम स्टेटिस्टिकल एप्लीकेशन. जैसे आपके पास आप चाह रहे हैं, यू वांट टू नो द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. वन वे इज दिस दैट गो एंड कलेक्ट द मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. अदर वे इज दिस एंड गो टू द ऑफिस एंड आस्क फॉर द registers or the details of the students who were admitted in the batch, so you can get your information from the office. बट ये जो डेटा आपने ऑफिस से लिया है, ये ऑलरेडी थ्रू सम प्रोसीजर कलेक्ट हुआ है, इस पे स्टेटिस्टिक्स अप्लाई हुई हुई है. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा भी स्लाइटली सेम कॉन्सेप्ट है. इन अनग्रुप डेटा देयर इज नो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इन ग्रुप डेटा देयर इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Secondary data is not always grouped. Secondary data can be grouped or ungrouped, but it should be at least at least one time treated by some statistical application. जैसे at least उसके tables बने हो, at least उसको graph में express किया हो. Secondary जो ungrouped और primary data है उसमें कोई फ़र्क नहीं है. They both are the same. They are the raw data. But the secondary data may be grouped or ungrouped, but it should have been treated once by some statistical procedure. At least एक दफ़ा या तो उसकी sorting हुई होगी, या उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल फार्मूला लगा होगा, या उसकी ग्राफ बने होंगे. एटलीस्ट वो अरेंज्ड फॉर्म में होगा. सेकेंडरी डेटा इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड हैंड डेटा, जो आप दूसरों से लेते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी डेटा.
इसी तरह आपके पास जो ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा के लिए पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। जो डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप डेटा। तो एक स्लाइड सा डिफरेंस आता है सेकेंडरी डेटा और ग्रुप डेटा के बीच, कि सेकेंडरी डेटा में दोनों केसेस हो सकते हैं, इट कैन बी ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, बट उसके अंदर आपका एटलीस्ट वन टाइम स्टेटिस्टिकल एप्लीकेशन होती है और वो आप किसी और से कलेक्ट करते हैं, यानी किसी पे ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा यूज़ कर रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ ग्रुप डेटा व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज़ सम प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डेटा हमेशा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है फॉर कंसिडरेशन इन वाइवा, कि व्हाट इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपली अ टेबल विच इंक्लूड्स क्लासेस एंड द नंबर ऑफ आइटम फॉलोइंग इन ईच क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसपे आपके पास क्लासेस होगी और उसके साथ उसके नंबर ऑफ आइटम्स फॉलोइंग इन ईच क्लास होंगे। In the same way, next question, which is quite easy, कि what is the difference between class limits and class boundaries? क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने आपको काफ़ी दफ़ा लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दिया है। बट जनरली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्लास लिमिट्स जो होती है, दीज आर द एंड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग, जो ओवरलैप नहीं करती। जैसे फर्स्ट क्लास अगर 5 to 9 है, नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 10 to 14, 15 to 19। आपके पास जो एंड पॉइंट्स हैं वो प्रिसाइज होंगे, उसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होगी। जो जिस पे क्लास पहले ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट क्लास उससे स्टार्ट नहीं होगी, नेक्स्ट वर्ड से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट नंबर से। इन द सेम वे क्लास बाउंड्रीज क्या है, क्लास बाउंड्रीज आर द ओवरलैपिंग क्लासेस। जैसे एक क्लास होगी 5 to 10, नेक्स्ट विल बी 10 to 15, देन 15 to 20। जो आपके एंड पॉइंट्स है वो ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे से कंसाइड कर जाएंगे। क्लास लिमिट्स जो है वो एक्सक्लूसिव, वो जो क्लास लिमिट्स जो आपकी है उसके अंदर आपकी ओवरलैपिंग है और क्लास बाउंड्रीज में ओवरलैप नहीं होता, रेपिटिशन ऑफ द एंड पॉइंट्स नहीं होती। लिमिट्स और बाउंड्रीज को कन्वर्ट करने के लिए हम उनका डिफरेंस लेते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, लोअर वैल्यू से माइनस और अपर वैल्यू में उसको ऐड करते जाते हैं। आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन का है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का, उस पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो वाइवा वॉइस का क्वेश्चन आता है, दैट इज के बिन्स क्या है। बिन्स आर द अपर क्लास लिमिट्स। जो आपकी क्लास लिमिट्स बनाते हैं आप प्रैक्टिकल में, उसे हम क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट्स को क्या कहा जाता है, बिन्स। और आगे एक कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल हाइट। ये वो गैप है जो दो कंसेक्टिव क्लास बाउंड्रीज में होता है। जो एक क्लास का इंटरवल है, गैप है कि वो कितने यूनिट्स इंक्लूड कर रहा है, डेट इज कॉल्ड साइज ऑफ क्लास इंटरवल। उसके बाद आपके पास ग्राफ्स है डिफरेंट। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्स एंड चार्ट्स। चार्ट्स और ग्राफ में क्या फ़र्क है। जो चार्ट्स होते हैं, these are the pictures which are used for qualitative categorical data। या तो ये आपके जो चार्ट्स है वो क्वालिटेटिव डेटा पे या कैटेगोरिकल डेटा जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। एंड ग्राफ्स आर पर्टिकुलरली यूज फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये आपने याद रखना है कि चार्ट्स जो है क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर अप्लाई होते हैं। क्वालिटेटिव डेटा मीन्स एनीथिंग लाइक विच इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ़ यू हैव आई कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी, तो आप 3-4 आई कलर्स आपको दिए हो और साथ उसको आपको दिया हो कि उस आई कलर्स में कितने कितने स्टूडेंट्स इस आई कलर को इस के का आई कलर ये है, तो ये जो आपके पास बनेगा उसके लिए आप चार्ट्स यूज़ करेंगे। चार्ट्स जो है पर्टिकुलरली कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगराइज डेटा के ऊपर अप्लाई होता है। वेयर एज ग्राफ्स आर यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो फिर हम उसमें ग्राफ्स यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड मल्टीपल बार चार्ट? सिंपल बार चार्ट इज़ यूज्ड फॉर वन कैटेगोरिकल वेरिएबल। अगर आपके पास एक कैटेगरी है, एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, यू विल यूज़ सिंपल बार चार्ट। वेयर एज इफ यू हैव मोर देन one variables, so you will go for multiple bar chart. For example, कि अगर आपके पास सिर्फ बर्थ रेट है डिफरेंट कंट्रीज का, यू विल मेक सिंपल बार चार्ट, बट इफ यू हैव बर्थ रेट एंड डेथ रेट, you will go for multiple bar charts. Pie chart is a special graph which is expressed by the area of sector of the circle. पाई चार्ट सर्कुलर फॉर्म में बनता है, पाई की शेप में होता है, इसलिए इसका नाम पाई चार्ट है. It has circles and it includes the components which are expressed by the area or the sectors of the circles. Circles के different segments किए जाते हैं. Total angle of the circle is always 360. हम 360 के एंगल को डिवाइड करते हैं तो डिफरेंट एरियाज और एंगल ऑफ सेक्टर्स, और उन एंगल ऑफ सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली हम पाई चार्ट को डिज़ाइन करते हैं. सो पाई चार्ट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय सर्कल्स एंड इट्स सेक्टर्स. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. कैसे किया जाता है? हर प्रीवियस क्लास में नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके. हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हिस्टोग्राम की आपके पास डेफिनेशन पूछी जा सकती है. सिंपल सी बात है, हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, साथ साथ जुड़ी हुई रेक्टेंगल्स होती है, विच इज़ यूज फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. पॉलीगन इज ऑल्सो यूज फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स की फॉर्म में नहीं होता, ये पॉइंट्स और एक फ्री हैंड कर्व की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. इन द सेम वे इन थर्ड चैप्टर आपको मीन मीडियन मॉड की बेसिक डेफिनेशंस याद करनी है. व्हाट इज़ मीन, व्हाट इज़ मीडियन, व्हाट इज़ मॉड. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी हो सकता है कि विच एवरेज कैन पेयर मोर देन वंस इन अ डेटा. एक दफ़ा से ज़्यादा आ सकती है. याद रखिएगा कि मीन मीडियन और मॉड में सिर्फ मॉड है जो विच कैन अपेयर मोर देन वंस इन योर डेटा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मॉड की बात करें तो मॉड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है. तो देयर कैन बी 2 or 3 or 4 modes in your data. So remember that mode is the only measure of central tendency which can appear more than once in a data. बाकी सब चीज़ें जैसा मीन, मीडियन है, क्वार्टाइल्स है, परसेंटाइल्स है, ये सिर्फ एक दफ़ा डेटा में आते हैं. उसके अलावा क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल्स की आप डेफिनेशंस पढ़ लें. स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है वो डेफिनेशंस पढ़ लें. उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर द मेजर्स व्हिच आर यूज्ड टू फाइंड द स्कैटरनेस इन योर डेटा. आपका स्कैटरनेस शो करने के लिए जो मेजर्स यूज होते हैं कि डेटा में कितना स्प्रेड है, दीज मेजर्स आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. एंड एज आई हैड डिस्कस इन माय लेक्चर, there are two basic types, absolute and relative. Absolute have the units and relative have don't have any unit with them, और ये ratios की फॉर्म में होते हैं. जब आपके measure of dispersion किसी units के साथ आ रहे हैं तो वो absolute है, और जब आपके पास without units ratios की फॉर्म में आ रहे हैं तो वो measure of dispersion आपके relative measure of dispersion से. Next question can be of correlation. What is correlation? What is the difference between correlation and regression? वो मैं already अपने lectures में आपको बता चुकी हूँ. What are the properties of correlation coefficient? These were also discussed. And there can be some questions from sampling, what is meant by simple random sampling, what is sampling, types of sampling, with replacement क्या होता है, without replacement क्या होता है. ये सब lectures आपके पास already है. टेस्टिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स के थोड़ी सी थेरी पढ़ ले. जस्ट बेसिक थेरी, डोंट मेमोराइज, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है. जस्ट सिंपली go to the concepts and clear your concepts for your viva. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रैक्टिकल्स में नहीं है. तो मेजॉरिटी क्वेश्चन उन पोर्शन से आएंगे जो आपसे रिलेटेड है, जो प्रैक्टिकल में इंक्लूडेड है.
आपकी ईज़ के लिए प्रैक्टिकल 1 टू 10 तक रिड्यूस कर दिए गए हैं, जो 10 के बाद के प्रैक्टिकल्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। बट फॉर वाइवा जस्ट मेमोराइज ऑल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम प्रैक्टिकल नंबर 1 टू 20, यानी थ्योरेटिकली आपको सबका पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिग्रेशन, व्हाट इज़ कोरिलेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। इसके अलावा आपका एक प्रैक्टिकल, इस तरह के छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको टिप्स पे होने चाहिए। इसके अलावा रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होती है, -1 से लेके +1 तक, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू करें और इंशाल्लाह आपका वाइवा अच्छा हो जाएगा। और ऑलवेज रिमेंबर, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इसकी प्लीज़ वीडियोस बनाएं अपनी उसकी प्रैक्टिकल्स की, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं वो वीडियोस तो नहीं बना सकी। बट रिमेंबर ऑलवेज कि जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिकल करेंगे तो आपने 3 कीज़ को एक साथ प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर आपकी साथ साथ कंसेक्टिव एक साथ साइमल्टेनियसली वो आप उसको प्रेस करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसीज आएगी। एक और बहुत बड़ी गलती ये स्टूडेंट्स करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि जब वो बिन्स बनाते हैं तो जो आपको हाइट दी होती है उसको वो सही तरीके से ऐड नहीं करते। लेट्स सपोज कि अगर आपने हाइट आपको 5 है और यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 से लेके 15 तक क्लास नहीं बनेगी, 10 टू 14 बनेगी, नेक्स्ट नंबर 15 होगा। वर्टिकल एडिशन करते हैं, पहले हम लोअर लिमिट सारी बना लेते हैं 10 15 20 20, फिर एक बैक जाते हैं। जो ये गलती है ये आप कल प्लीज़ मत कीजिएगा। आपकी जो हाइट है वो वर्टिकली ऐड होगी, हॉरिजॉन्टली नहीं होगी, उससे आप बैक जाएंगे फॉर मेकिंग बिन्स। जैसे 10 अगर आपको 5 की हाइट है, 10 टू 40, देन 15 टू 19 वर्टिकली ऐड करेंगे, 10 15 20 25 इस तरह, और फिर एक एक बैक करके आपने क्लासेस बनानी है। ये बहुत मेजर मिस्टेक्स होती है प्रैक्टिकल में। एक मिस्टेक ये होती है कि जब वो फ्रीक्वेंसी जब जब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो उससे पहले आपको वो एरिया के बटन के साथ शिफ्ट के बटन को प्रेस करके साथ सेलेक्ट करना होता है। अगर आप शिफ्ट की के बगैर वो एरिया सेलेक्ट करेंगे तब भी आपकी फ्रीक्वेंसी अपेयर नहीं होगी। बॉर्डर्स एंड सेंटर अलाइनमेंट के भी नंबर होते हैं। जब आप डेटा एंटर करें साथ ही उसके ऊपर बॉर्डर्स और सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर दें। ग्राफ्स जो है वो सारे इंसर्ट मेन्यू और रिकमेंडेड चार्ट्स में से अवेलेबल है, उसमें से आपको ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। जस्ट आपने इंसर्ट पे जाना है और रिकमेंडेड चार्ट्स और रिक्वायर्ड जो आपका फॉर्मेट है वो आपने यूज़ करना है। बट चार्ट्स में जो बड़ी गलती आती है, एक तो स्टूडेंट्स बॉर्डर एंड सेंटर अलाइनमेंट का ख्याल नहीं रखते, और दूसरा ये कि जब आपने चार्ट बना लिया तो आपका पेज 1 पेज डिस्प्ले होना चाहिए चार्ट के अंदर। 1 पेज डिस्प्ले के लिए आपको चार्ट को बिलो द डेटा लाना है, डेटा टेबल जहाँ आपने बनाया है उसके नीचे लाकर उसे प्लेस करना है। इसके भी मार्क्स फिर अक्सर कट जाते हैं। हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज की रिक्वायरमेंट है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको मिड पॉइंट्स चाहिए, और मिड पॉइंट्स भी ऐसे कि एक क्लास ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएंगे एडिशनल, और एक क्लास आपको एक्स्ट्रा क्लास नीचे इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी एट द एंड। सो ये जो छोटे छोटे बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अपने माइंड में करें और इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। सेंटर अलाइनमेंट, बॉर्डर्स और उसके बाद 1 पेज डिस्प्ले, ये सारा कुछ अगर आपने सही कर लिया तो आई होपफुली कि आपको फुल तो नहीं तो लेकिन एटलीस्ट 24 आउट ऑफ 25 मार्क्स तो बहुत ईजिली मिल जाते हैं। ब्रिंग योर कॉपीज विद यू, ब्रिंग योर कॉपीज, प्रिपेयर फॉर द वाइवा। बस ये 2-3 इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ जी, एक और इंस्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ वेयर मास्क एंड ब्रिंग योर ओन लैपटॉप्स। जैसे मर्जी अरेंज कर ले, बेशक आप फैमिली से वो कर ले, बट ब्रिंग योर ओन लैपटॉप्स। जो हमारे लैपटॉप्स हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, सिस्टम है, वो वेन्यू पे नहीं है, वो कंप्यूटर लैब में हमारा वेन्यू रूम नंबर 17 है। और एक और चीज़ कि आपके पास जो लैपटॉप्स हो वो फुली चार्ज हो, उसको चार्ज भी पहले करके लाइएगा, क्योंकि सॉकेट्स भी अवेलेबल नहीं होंगे कि आप वहाँ बैठ के चार्ज कर सके। एक दिन के लिए इन्हें अरेंज करें
और टाइम पे पहुँचे, जो आपका यूनिवर्सिटी टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग, जो आपको रोल नंबर स्लिप्स पे टाइम है वही आपने फॉलो करना है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने आके अपना प्रैक्टिकल टाइम पे देना है। थैंक यू सो मच।